Okay, in previous lecture we have started chapter number 13, that is why do we fall ill. Okay, हम बीमार क्यों पड़ते हैं. इसके अंदर in we have discussed that 13.1 health and its failures, and what is the health and healthy and disease free life. Okay, so we have discussed that. Now in this lecture we will discuss disease and its causes. 13.2. Now in 13.2.1, what does disease look like? Let us know think a little more about disease. In the first place, okay, how do we know that there is a disease? In other words, how do we know that there is something wrong with the body? There are many tissues in the body, as we have seen in chapter 6. These tissues make up psychological system or organ system that carry out body functions. Each of the organ systems has specific organs as its parts, and it has particular function. So the digestive system has the stomach and intestines, and it helps to digest food taken in from outside the body. Okay. When there is a disease, either the functioning of one or more systems of the body will change for the worse. Okay. When you have something wrong in your body, or if you have something disease, some type of disease in your body, like if you have the fever, your body gets warm and loose. And when you have the kidney stone problem, when it is panic in your stomach. So when you have any of the diseases, so you have something went wrong in your body, and the body will get affected, body parts will get affected, and the system will be affected. So the effect of the just because of effect of the any disease, there is symptoms of that diseases. Okay, now the first two type of diseases is given, that is acute and chronic diseases. Now what do you mean by that? The manifestation of diseases will be different depending on a number of factors. Some diseases last for only very short period of time, and these are called the acute diseases. Okay, so the definition of acute diseases is given: diseases last for only very short period of time. This is called acute diseases. मतलब ऐसे disease जो कि कुछ short time के लिए, short period के लिए ही होते हैं, so उसको हम बोलते हैं acute disease. जैसे कि for experience that the common cold lasts only a few days. जो common cold होता है, सर्दी खांसी, तो कुछ दिनों के लिए ही होती है. Okay, फिर other elements can last for a long time, even as a much as a lifetime, and are called chronic diseases. मतलब ऐसे कुछ diseases जो for lifetime रहते हैं. जैसे कि suppose अगर डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, ओके, कैंसर है, सो ऐसे डिजीज जो होते हैं वो लाइफ टाइम के लिए होते हैं, मतलब वो हमेशा के लिए रह जाते हैं. ओके, सो दो टाइप के डिजीज देखे हमने. फर्स्ट वन इज एक्यूट डिजीज एंड द सेकंड वन इज chronic diseases. In acute disease, it's the period of time is very short. Okay, so example is given, that is common cold. And number two, chronic disease is, in chronic disease it is, its time period is very long and even as much as lifetime. Okay, so example is given like uh, diabetes, cancer, blood pressure. Okay, now in activity 13.4, survey your neighborhood to find out, number one, how many people suffered from acute diseases during the last 3 months. Now you can do a survey of that. Okay, so जैसे कि सर्वे कर सकते हो आपके कितने पीपल जो है वो लास्ट 3 मंथ में एक्यूट डिजीजेस से सफर कर रहे हैं. ओके, नंबर टू इज हाउ मैनी पीपल डेवलप्ड क्रोनिक डिजीजेस ड्यूरिंग दिस सेम टाइम. ओके, सो कितने ऐसे पीपल है जिसको क्रॉनिक डिजीज हो गया है इस टाइम पीरियड में. एंड फाइनली द टोटल नंबर ऑफ पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज इन योर नेबरहुड. ओके, आर द आंसर टू क्वेश्चन वन एंड टू डिफरेंट? यस, इट विल बी डिफरेंट. नो, क्रोनिक डिजीजेस के जो है वो सेम ही होंगे, एंड द क्वेश्चंस
वन और टू का सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। ओके, नाउ नंबर 3, 13.2.3, chronic diseases and poor health. Acute and chronic diseases have different effects on our health. Any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our health. मतलब ऐसा कोई भी डिजीजेस जो कि हमारी बॉडी की हेल्थ पे, कोई पार्ट पे, फंक्शनिंग पे क्या करेगा, पुअर फंक्शनिंग कर देगा। मतलब उसका एक्चुअल हाथ जो हम सही से हिला सकते हैं, या हम अच्छे से चल सकते हैं, या हमारी किडनी अच्छे से वर्क कर सकती है, फिल्ट्रेशन कर सकती है, बट सम डिजीजेस की वजह से वो क्या हो जाएगी, थोड़ी इफेक्ट होगी, तो उसका वर्क जो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे हार्ट अटैक की बात करें हम, तो भाई हार्ट अटैक में क्या होता है, जो नस ब्लॉक हो जाती है, हमारी जो वेन्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है, तो उससे जो हार्ट का जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाता है, पुअर हो जाता है। ओके, सो this is because all function of the body are necessary for being healthy. Okay, so एक सिर्फ हार्ट में हमको ब्लॉकेज होने की वजह से पूरी बॉडी जो है वो वर्क करना कभी कभी बंद कर देती है, या हम एकदम से लूज फील करते हैं। ओके, सो but an acute disease which is over very soon will not have time to cause major effects on general health, while a chronic disease will do. Okay, जो कोई भी एक्यूट डिजीज होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, तो उससे कोई मेजर इफेक्ट नहीं होता हमारी बॉडी पे। जैसे कोई सर्दी जुकाम हो गया हमको, हो गया कॉमन कोल्ड हो गया, तो वो कुछ दिन रहता है, उसमें हम थोड़ा लूज लूज फील करते हैं, लो फील करते हैं। ओके, जो कुछ भी हमारी बॉडी थोड़ी पेन करती है, बट आफ्टर सम टाइम जब कॉमन कोल्ड ठीक हो जाता है, तो हम जो है परफेक्टली फिट हो जाते हैं। बट when you have a diabetes या pressure या cancer or something, the big diseases which is called chronic diseases, तो आपकी बॉडी जो है वो धीमे 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 क्या होती है, उसका फंक्शनिंग कम होते जाता है, वो उसकी इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारी बॉडी के ऊपर रहती है। ओके, सो एज एन एग्जांपल थिंक अबाउट कफ एंड, जो कफ के बारे में जैसे हमने बताया, सो ये पॉइंट के अंदर इतना ही है अपने। नाउ कॉजेज ऑफ डिजीजेस, क्या किस तरीके के डिजीज क्यों हो सकते हैं डिजीज। ओके, तो भाई बहुत सारी टाइप के डिजीज हो सकते हैं, मतलब क्यों होते हैं, तो जैसे कि हमारी ड्रिंकिंग की कोई हैबिट है, या हम पानी कम पीते हैं, या फिर ऐसे कोई एरियाज में जाते हैं जहाँ पे इंसेक्ट वगैरह है, या कोई भी बैक्टीरिया, फंगस, या जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हैं, तो दैट्स वाई हमको कॉजेस हो सकते हैं और डिजीज के। ओके, नाउ 13.2.5, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। ओके, अब इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, सो ऐसे डिजीजेस जो कि इन्फेक्शियस डिजीज है, वो क्या होता है, इमीडिएट कॉज है, मतलब कोई भी एक माइक्रोब्स के तुम उसमें आओगे, कांटेक्ट में आओगे, तो वो इमीडिएटली तुमको इफेक्ट करेगा, तो दिस इज कॉल्ड इन्फेक्शियस डिजीज। जैसे कि अभी ड्यू टू कोरोना क्या है कि इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके, मतलब अगर हम कोई कोरोना वाले के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो दैट्स वाई इट इज 100% चांस और 99% चांस कि हमको भी कोरोना हो जाएगा। ओके, दैट इज कॉल्ड द इन्फेक्शियस डिजीजेस, अंडरस्टैंड। बट सम ऑफ देम आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, जैसे कि इट्स नॉट पॉसिबल कि भाई अगर कोई ब्लड प्रेशर वाला है या डायबिटीज वाला है, उसके हम कांटेक्ट में रहेंगे तो हमको इमीडिएट इफेक्ट से डायबिटीज या ब्लड प्रेशर हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, इट इज मे बी पॉसिबल जेनेटिकली भी हो सकता है, या मे बी पॉसिबल ड्यू टू सम प्रॉब्लम इन योर बॉडी हो सकता है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई के कांटेक्ट में आ गया तो तुरंत हमको डायबिटीज हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो कुछ अलग अलग तरीके के माइक्रोब्स के, अगर तुम जैसे कि अगर को कॉमन कोल्ड की बात करें, कॉमन कोल्ड अगर किसी को सर्दी खांसी हुई है, तो अगर हम उसके कांटेक्ट में रहेंगे थोड़ी देर तक, तो मे बी पॉसिबल के इमीडिएट इफेक्ट से उसकी हमको भी सर्दी खांसी हो सकती है, कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है। ओके, जैसे कि कोरोना की बात करी हमने, वो भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है। ओके, वैसे ही अपने चिकन पॉक्स है, तो चिकन पॉक्स बचपन में बच्चों को एक बार हो जाता है, बरोबर, तो दूसरा बच्चा अगर उसके उसमें आए, कांटेक्ट में आए, तो वो भी हमको हो सकता है। ओके, सो इस टाइप के जो कोई भी डिजीजेज है जो किसी की कांटेक्ट में आने से हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। और ऐसे डिजीज जो किसी के कांटेक्ट में आने से भी नहीं होंगे, जो कि जेनेटिकली हो सकते हैं,
या मे बी पॉसिबल ड्यू टू सम इफेक्ट इन बॉडी, वो डिजीज हो सकते हैं, उसको नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस कहेंगे। ओके, सो यहाँ तक रखते हैं अपने।